Assalamu alaikum everyone. Today we are meeting after a long gap and we will start new chapter cell cycle and उसको भी बल्कि हम पढ़ चुके हैं. अभी मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू कर रहा तो हमें जस्ट फोकस. इसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स लाइक इंटरफेस का टॉपिक ऑफ सेल साइकिल पढ़ा है और माइटोसिस भी और थोड़ा सा मायोसिस भी, but we will start from the beginning. So, cell cycle. In this chapter, we are going to talk about that cell cycle, which consists of interphase and M phase, and then we will go into the detail of mitosis, meiosis, and its consequences, and apoptosis and necrosis. Okay? So mainly, this happens with the phenomena of reproduction, because reproduction is the basic theme of life. Whatever form of life we see, they cannot flourish, they cannot go beyond certain boundaries until they reproduce. चाहे आप वो बैक्टीरिया की बात करें, चाहे वो वायरसेस हों या एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, every organism, every living organism reproduces. Life is not possible without reproduction. It's impossible. And reproduction is happening at various levels, चाहे वो cell level हो, chromosomes level हो या individual level हो. अच्छा, cell level पे like one cell is reproducing into 2 cells or one cell is reproducing into 4 cells. तो ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे. And cell के अंदर भी reproduction हो रही ना. We don't call it reproduction, but that is also reproduction. कि क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट कर रहे हैं. एक क्रोमोसोम से दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड बन रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन. अच्छा, इंडिविजुअल्स व्हेन रिप्रोड्यूस, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, they bring new offspring into this world, so that is also reproduction. So if we recall the information we studied about Rudolf Virchow in the previous chapter, I think we studied in the second chapter that cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells, and मतलब a new cell cannot come all together. खुद से ज़मीन पर नहीं वो आ सकता, या खुद से खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो सकता. कोई ना कोई पहले से एग्जिस्टिंग सेल होता है जिससे एक नया सेल बनता है. यहीं से हमें पता चलता है कि लाइफ डिपेंड्स ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. यानी अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाएं रिप्रोडक्शन के, तो सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो नए सेल्स आएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे. आई मीन reproduction of cells is the vital process of reproduction at next level, at individual level. ठीक है. और सेल डिवीजन तो एक जस्ट पार्ट है पूरे सेल साइकिल के प्रोसेस का. सेल साइकिल सिर्फ सेल डिवीजन पर कंसिस्ट नहीं है, it consists of many other steps. Let's move on and talk about cell cycle. What is basically cell cycle? What I'm doing. What is a cell cycle? It's actually a series of events which start from when a cell is produced, when a cell is born, until it completes mitosis and produces a new cell. What I mean to say is that cell cycle consists of different phases, a series of events like G1 phase, S phase, G2 phase. जैसे ही ये cell बनता है, it enters into these series of events until it enters into mitosis phase and produces new cell, because M phase is a dividing phase. So series of events are like number 1 G1 phase, S phase, G2 phase, and then M phase. Sometimes cell enters into G0 phase as well. So basically we can also say that cell cycle consists of two major phases.
इंटरफेस एंड एम फेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेज इज बेसिकली अ रेस्टिंग फेज ऑफ सेल। रेस्टिंग फेज हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग फेज इस तरह से है कि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करता। तो द इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ G1 phase, S phase and G2 phase, and we can also say G0 phase whenever it is going to enter into G0 phase. तो M phase एक अलग phase है which is dividing phase. M phase is the phase जहाँ पर cell की cell division हो रही है, cell is dividing into two cells, or we can even say four cells, but अभी हम उसकी बात नहीं करते। तो मेजर टू phases हैं interphase and M phase. Interphase consists of these three phases along with this one too. ठीक है, तो you should know what interphase is and M phase. Let's move on. Now I'm moving to the first phase of cell cycle, G1 phase. But before going into that detail, let's look at this picture. See, I deliberately chose a simple figure जिसमें आपको मैं बता सकूं कि सेल जैसे ही प्रोड्यूस होता है इट एंटर्स इनटू G1 फेज। तो जो काम है गैप 1 फेज में वो करता है G1 फेज। और मैं बताती हूँ कि व्हाई आई कॉल्ड इट गैप। एंड देन इट एंटर्स इनटू S फेज, उसमें भी जो काम होंगे वो मैं डिस्कस करूँगी। फिर वो G2 फेज में एंटर होता है और उधर भी सर्टेन इम्पोर्टेंट काम करता है, एंड देन M फेज में एंटर होता है। लुक एट द टाइम स्पैन। M फेज पूरी सेल साइकिल का थोड़ा सा फेज है, while ज्यादातर टाइम इंटरफेज में गुजर रहा है। सी, सेल की जिंदगी का ज्यादा टाइम इंटरफेज में गुजर रहा है एक साइकिल का, और थोड़ा टाइम M फेज में गुजर रहा है। फिर दोबारा से वो शुरू हो जाएगा इंटरफेज एंड M फेज, इंटरफेज एंड M फेज। तो एक साइकिल का मेजर टाइम इंटरफेज में गुजर रहा है। सो कमिंग बैक टू G1 फेज, अब हम G1 फेज की डिटेल में जाते हैं कि ये ग्रोथ फेज है and G stands for gap. So it's a gap 1 phase, or G stand the other G also will be called as gap 2 phase. Here the cell is in the gap phase where it is and creating different things. तो जैसे ही नया सेल बॉर्न होता है from the previously existing cell, वो G1 फेज में एंटर होता है, और चूंकि अभी न्यू बॉर्न है तो छोटा सा होता है साइज में। तो यहाँ पर वो अपनी प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज करता है, यानी नई नई प्रोटीन्स बनाता है। देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बनाना। बनते साथ ही सारे ऑर्गेनील्स नहीं होते, अपनी डिमांड के मुताबिक सेल यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, गोल्जी बॉडीज बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनील्स बनाएगा, जो कि हमने 4th चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो जब वो ये सारे ऑर्गेनील्स बना रहा है और ये प्रोटीन्स बना रहा है, तो एज अ रिजल्ट इसका साइज भी बढ़ेगा। मतलब द मोमेंट द सेल इज एडिंग अप ऑर्गेनील्स, तो उसका साइज भी अल्टीमेटली बढ़ रहा है। एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक वेरियस डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज व्हिच इज एस फेज। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मुख्तलिफ एंजाइम्स बन रहे हैं जो कि एस फेज में चाहिए होंगे। और एस फेज बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, मैं बताऊंगी। तो वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो एस फेज में हम जा नहीं सकेंगे। गैप 1 फेज इज दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इन एंजाइम्स का बनना बहुत ज़रूरी है, इनका भी, इनका भी, इनका भी, बट ये तो बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट इंटरफेस, हाउ मच टाइम इट टेक्स टिपिकली। आपको पहले भी मैंने बताया कि इंटरफेस ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ आई मस्ट टेल यू कि 90% टाइम एक सेल साइकिल का इंटरफेज में स्पेंड हो रहा है, और 10% टाइम जो है वो एम फेज में स्पेंड हो रहा है। So remember, 90% time is spent on interface. Next, let's move to the next slide. Now I have to tell you what is S phase. After G1 phase, cell is entering into S phase,
or which is very important phase because here the chromosomes are duplicating, double हो रहे हैं. Double doesn't mean double in quantity. S phase में सेल पहले इस तरह से थे, मतलब जब G1 फेज से एंटर हो रहे हैं तो ऐसे थे, सिंगल क्रोमेटिड, और जब डुप्लीकेट हुए तो ऐसे हो गए. नाउ दिस वन ब्लू स्ट्रैंड इज अ क्रोमेटिड, और यहाँ पर उसी क्रोमोसोम में एक और क्रोमेटिड आ गया है, तो वी कॉल them as, can you see capital A? The capital A chromatid is bearing another capital A chromatid, same exact copy. तो हम इन दोनों को sister chromatids कहते हैं. Or small a, the purple one, is going to bear another chromatid, so we represented it as small a, which means they are exactly similar to each other. इसीलिए इनका नाम sister chromatids रखा है. Sister chromatid means एक दूसरे से बिल्कुल कॉपी है, यानी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रही है, बट कॉपी पेस्ट हमारे कंप्यूटर वाली नहीं हो रही. It requires different enzymes and it requires a lot of complicated machinery, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती बिकॉज ये आपकी क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है. Otherwise we can obviously have a whole lecture of DNA replication or duplication. ठीक है, तो replication और duplication is the same thing, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड्स हो गए हैं, यानी क्वांटिटी नहीं बढ़ती जा रही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहेंगे जितने भी हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो रहे हैं एक क्रोमोसोम के अंदर. एंड दिस इज बेसिकली द एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम. सो एस फेज में नाउ द क्रोमोसोम्स आर इन देयर ट्रू पिक्चर हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, तो what happens, this is what happens in S phase, a very important thing. Then cell enters into the next phase, which is gap 2 phase or G2 phase. Here what happens, इधर भी बहुत से important काम हो रहे हैं. Cell is making proteins which are very important for the next phase, which is mitosis. ठीक है, यहाँ पर वो important proteins बन रहे हैं जो कि हमारी next phase में हमें ज़रूरत होंगे, mainly for the production of spindle fibers. अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स की मेकिंग में ये प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं. अभी आपको 100% क्लियर नहीं होगा बिकॉज स्पिंडल फाइबर की इम्पोर्टेंस जो है वो माइटोसिस में ही क्लियर होगी. बट मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियोस देख ली है, तो आप लोगों ने इवन माइटोसिस की वीडियोस भी देख चुके हैं, so you know what spindle fibers are. But still, let me just try to draw it for you. Although मेरी drawing इस पे इतनी अच्छी नहीं होगी, ये अगर मैं सेल बनाऊं रफली, तो स्पिंडल फाइबर जो है, जब भी सेल जो है सेल डिवीजन में एंटर होता है तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, तो सेल इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनाने शुरू हो जाते हैं. फाइबर्स इसी तरह बिल्कुल पतली पतली. प्लीज एक्सक्यूज माय डायग्राम because I'm not familiar with this. तो इस तरह से फाइबर्स बनती हैं. अच्छा, इन फाइबर्स को हम प्रोटीन इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, और इन फाइबर्स के ऊपर बेसिकली एम फेज में माइटोसिस में क्रोमोसोम्स अपने आप को अटैच करते हैं. यहाँ पर आकर अटैच किया, यहाँ पर आकर अटैच किया. These fibers, these spindle fibers basically help in separation of sister chromatids. तो वो हम M phase में पढ़ेंगे, M mitosis में पढ़ेंगे. But this spindle fibers are protein in nature. तो ये जो प्रोटीन है, क्लियर कर, चलो छोड़ो क्लियर करो. ये जो स्पिंडल फाइबर्स की जो प्रोटीन है, ठीक है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स की प्रोटीन है वो G2 फेज में बन रही है, गैप 2 में. दिस वन
प्रोटीन्स, स्पिंडल फाइबर्स की प्रोटीन्स गैप 2 में बन रही हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचें अगर गैप 2 में प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो हाउ कैन अ सेल एंटर्स इनटू एम फेज। अब मैं लेट लेक्चर रिकॉर्ड करने का ये नुकसान होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो यू कैन हेयर दिस बैंग बैंग बैंग। अच्छा, तो gap 2 is making certain proteins which is very important in mitosis। तो अगर ये प्रोटीन नहीं बनती तो एम फेज में सेल एंटर नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर ये बात जिक्र कर दूं कि देर आर सर्टन चेक पॉइंट्स। अच्छा, ये अब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपकी बुक्स में नहीं है इन FBISC कोर्स और पंजाब कोर्स। अच्छा, तो देर आर चेक पॉइंट्स, एक तो गैप 1 चेक पॉइंट है और एक गैप 2 चेक पॉइंट है और एक एम फेज का चेक पॉइंट है। These checkpoints are important points where cell checks various things। अगर आप गैप 1 में चेक पॉइंट देखो तो इट इज गोइंग टू चेक कि ग्रोथ फैक्टर्स बन चुके हुए हैं कि नहीं बन चुके हुए, न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल मौजूद हैं कि नहीं, सेल का साइज बढ़ चुका हुआ है या नहीं, और डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। सब चीजें जब पूरी हो जाती हैं तो सेल एंटर्स इनटू एस फेज। डीएनए में कोई डैमेज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, गैप 2 का जो चेक पॉइंट है, दिस चेक पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू चेक मैनी थिंग्स। इट्स गोइंग टू चेक सेल साइज, डीएनए को देखेगा कोई डैमेज तो नहीं हुआ एंड ये चेक करेगा कि डीएनए और क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके हुए हैं कि नहीं। इस चेक पॉइंट में जब ये सारी चीजें complete होंगी तो then cell enters into M phase, otherwise cell will not enter into M phase। Talking about M phase का भी check point है, तो हमने तो अभी M पढ़ा नहीं है, but let me tell you कि यहाँ पर क्या check होता है। In M phase cell checks that chromosomes are attached to spindle fibers or not। Attachment is necessary, otherwise काम सारा खराब हो जाएगा। तो this is what happens in checkpoints। और मैंने आपको gap 2 पढ़ा दिया हुआ। तो उसके बाद हम सेल एंटर्स इनटू एम फेज। ठीक है, तो एम फेज की डिटेल्स तो हम पूरे एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, व्हिच यू कॉल इट माइटोसिस। एंड इसी में ही फिर मियोसिस भी इवन आ सकता है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही। बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस में भी इंटरफेस की यही फेजेस हैं। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि मियोसिस में भी इंटरफेस एक दफा होता है, तो उसकी भी यही फेजेस हैं सेल की। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने जहन में रखना है। तो नाउ एंटर, लेट्स टॉक अबाउट G0 फेज। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू G0 फेज, चलो मैं आगे बताऊंगी। What happens in multicellular eukaryotic cells? Cell can enter into G0 phase, as the zero tells you that cell is actually stopping to divide। इस फेज में cell stops cell division for a certain period of time। It varies for case to case। अच्छा, G0 फेज में सेल एंटर कब होता है? It enters after G1 फेज। हर दफा नहीं होता, बट कभी कभार ऐसा होता है कि सेल जो है G1 फेज से G0 फेज में एंटर हो जाए, which is basically cell cycle arrest। The whole cell cycle is arrested, is stopped here। तो हर साइकिल में सेल एंटर नहीं हो रहा। जब भी एक सेल के जेनेटिक मेकअप के मुताबिक, उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, what I mean now the cell doesn't want to divide according to the genetic information, cell enters into G0 phase from G1 phase। okay, यहाँ से, not from here, not from here, not from here। सेल जो है G0 फेज में एंटर हो जाता है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको डायग्राम में नहीं बताई कि आफ्टर एम फेज सेल इज डिवाइडिंग ना, सेल इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो आफ्टर जब वो G1 फेज में आता है तो कभी कभार अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल एंटर्स इनटू G0 फेज। नॉट इन एवरी साइकिल, प्लीज रिमेंबर, नॉट इन एवरी साइकिल। जब उसकी जेनेटिक
इंफॉर्मेशन होती है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, सेल डिवाइड करता है, फिर नया सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करता रहता है अनटिल उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहती है कि अब स्टॉप हो जाओ। कुछ सेल्स जो हैं विच एंटर इनटू दिस फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी परमानेंटली चले गए इनटू G0 फेज। कुछ कैटेगरी है विच एंटर्स इनटू G0 फेज सेमी परमानेंटली, यानी कि काफी अरसे तक रहा और फिर दोबारा से G1 फेज में चला गया, दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो गया। एंड सम ऑफ द सेल नेवर एंटर इनटू G0 फेज, उनमें G0 फेज है ही नहीं। अच्छा, द वन विच एंटर्स इनटू G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें एक न्यूरॉन्स के एग्जांपल हम ले सकते हैं। न्यूरॉन्स हमारे जो ब्रेन्स के सेल है, ये अर्ली लाइफ पीरियड में डिवाइड होते हैं। एज सुन एज वी एंटर इनटू बिकम अ बिट ग्रोन अप, चाइल्ड नहीं रहे, तो आर न्यूरॉन्स एंटर्स इनटू G0 फेज परमानेंटली। इसीलिए एडल्ट्स की अगर ब्रेन डैमेज होगा तो वो रिकवरेबल नहीं होता। अगर कोई न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं तो वो रिकवरेबल नहीं होता। लेकिन बच्चों में अगर न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं बिल्कुल ग्रोइंग एज में, तो दैट डैमेज कैन बी रिकवर्ड क्योंकि सेल्स आर इन डिवाइडिंग फेज। बट न्यूरॉन्स का डैमेज इज वेरी सीरियस डैमेज। बट आई मस्ट टेल यू कि न्यूरॉन्स एडल्ट्स में इनडेफिनेट पीरियड में G0 फेज में चली जाती हैं, तो they cannot make new cells, or any damage to the brain is lethal, is dangerous as well. अच्छा, those cells which enter into G0 phase semi permanently, उसमें कुछ सेल्स हैं लिवर के एंड कुछ सेल्स हैं किडनी के, कि वो परमानेंटली काफी अरसे तक G0 फेज में चले जाते हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड रीडिवाइड। आप इमेजिन करें कि लिवर एंड किडनी बोथ आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो मुझे लगता है those cells which are doing very strenuous work, लिवर के बहुत सारे काम हैं जो कि हमने 8th चैप्टर में पढ़े हैं। आप देखें, लकीली आप लोगों को मैंने 8th चैप्टर पहले पढ़ा है। आई टोल्ड यू अबाउट सो मेनी फंक्शंस ऑफ लिवर, और किडनी को तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन किडनी ऑल्सो डज द क्लींजिंग फंक्शन ऑफ होल ब्लड। तो ये भी